Dear students, this video would have a discussion about the three tasks, writing tasks that we gave you in your mock test. It has an essay, it has a task 1, and it has a suggestion for the letter also. Nowadays, there is an increase in social problems involving young people because more parents spend time at work than with their children. To what extent do you agree or disagree? So, in this kind of an essay, you have to give an opinion in the end, but you can totally agree with this, you can totally disagree with this, or you can partially agree or partially disagree, but in the final end, you have to give an opinion and you have to explain that opinion in the essay. तो आजकल दोनों माता पिता काम करते हैं और दोनों ज़्यादातर माता पिता काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने बच्चों पर कम। इस कम कारण समाज में वो समस्याएं बढ़ रही हैं जिसमें नौजवानों का हाथ हो। इस बात का कितना सहमत हो कि माता पिता के काम करने के कारण, ज़्यादा ध्यान देने के कारण बच्चों में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, समाज में समस्याएं बढ़ रही हैं। To understand the question, we have to consider what kind of social problems are they talking about. कैसी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं? तो जुवेनाइल क्राइम, जुवेनाइल होता है जो अभी तक पूरे तरह मैच्योर नहीं हुए, बड़े नहीं हुए, और उनको बोलते हैं एडल्ट नहीं हुए, उनको जुवेनाइल कहते हैं। वो क्राइम बढ़ रहे हैं, उनमें ड्रिंकिंग की हैबिट्स, ड्रग्स की हैबिट, रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ में। तो हमें एज ग्रुप को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। 11-12 से लेकर 17-18, 16-17 वाला एज ग्रुप है। तो हमें पास्ट सिचुएशन के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, क्योंकि वो पूछ रहा है आजकल बढ़ रही है। जब भी ऐसे आपको पूछे आजकल कोई चीज़ बढ़ रही है तो आप कह सकते हैं, आप पिछले टाइम के बारे में भी बात करके उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा, दीज डेज there has been a noticeable upsurge मतलब increase in the incidents of crime and other disturbing instances involving the youngsters. Is it due to the fact that not only both the parents work, but also the fact that they give more attention to their profession than their family? तो क्या इस कारण हो रहा है? Personally, I tend to be at par with this view. I agree with this view. As the absence of the mother from the home has spawned a rudderless generation. Rudderless होता है जिनका कोई कंट्रोल यूनिट नहीं है। स्पॉन का मतलब पैदा करना। तो मदर चली गई है जब वहाँ से, घर से, तो ऐसा ही आगे जनरेशन आ गया जिनका कोई आगे कंट्रोल यूनिट नहीं है। अब मेरा ये व्यू है, अब मैंने बता दिया कि मैं मानता हूँ और मैं किससे एग्री कर रहा हूँ कि इससे कि दोनों पेरेंट्स बाहर चले गए, इससे आने वाला जनरेशन पे बहुत असर बुरा हुआ है। अब दीज डेज देर हैव बीन, मैंने उसको थोड़ा और डिटेल में और अच्छे से लिख दिया। दीज डेज देर हैज बीन अ नोटिसेबल अपसर्ज इन द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम एंड अदर डिस्टर्बिंग instances such as drugs involving the youngsters. Is it due to the fact that not only both the parents work, but also that they give more attention to their profession than their family? Personally, I tend to be at par with this view. As the absence of parents, वहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज किया, especially the mother from the home, has spawned a rather rudderless generation. Introduction होगी. The most predominant point in favor of my school of thought, मेरी सोच के तरफ आप इसको याद कर सकते हैं लाइन को, you can use it जहाँ possible हो, is that most youngsters need a strong hand to keep them on an even keel. ज़्यादातर यंगस्टर्स को एक शक्तिशाली हाथ चाहिए होता है उनके ऊपर, ताकि उनको बराबरी में रखे, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। These days when the juveniles return home, they find it empty. घर खाली होता है। There are a plethora of, आप नोट करिए, a plethora of, many की जगह यूज हो सकता है, लेकिन a plethora of ही लिखना है और आगे काउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल, a plethora of water नहीं हो सकता, a plethora of boys, a plethora of chairs, many, several options available to them, and many of them are negative. They can do drugs, watch porn on the net,
or get into immature relationships and nobody is any wiser. किसी को पता भी नहीं चलता. Nobody is any wiser का मतलब किसी को पता भी नहीं चलता. If one of the parents was at home, they would be able to monitor what the young person was up to and keep them gainfully engaged. Gainfully engaged का मतलब है उनको सही काम पे लगाए रखना. There have been so many reported incidents where the youngsters have taken out their parents' cars and have killed many people just because the parents were just too busy to care. ये मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, ऐसा हुआ है. Furthermore, what makes the situation worse is the fact that when both the parents join the rat race, they begin होना चाहिए began की जगह, begin to keep longer and longer hours at work. एक तो उन्होंने रैट रेस ज्वाइन करना मतलब ऐसी रेस जिसमें सभी अंदर भागे जा रहे हैं. जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने टाइम भी ज़्यादा लगाने लग गए हैं काम पे. मोर ओवर देर इज़ अ लॉट ऑफ सोशलाइजिंग टू बी डन इन द इवनिंग, और इवनिंग में पार्टीज वगैरह होती हैं. टू कॉम्पनसेट फॉर देयर एब्सेंस दे स्टार्ट गिफ्टिंग एक्सपेंसिव गैजेट्स सच एज फोन्स, प्ले स्टेशन एंड कैश टू देयर प्रोजनी. प्रोजनी मतलब बच्चे. पर हमारे बच्चे, अगर आप सिर्फ प्रोजनी कहोगे तो किसकी प्रोजनी? तो मैंने देयर प्रोजनी. एंड ऑल्सो गिवन का मतलब उनकी हर बात मान जानी. विमेन फैंसी, जो भी जिद करते हैं, विमेन फैंसी जिद. दिस मेक्स द मैटर वर्स. इससे तो और बुरी हालात हो गए. आई टर्न्स नहीं होना चाहिए. इट टर्न्स द यंग चाइल्ड स्टबन एंड हेडस्ट्रॉन्ग एज वेल एज इनडिसिप्लिन्ड एंड रूड एंड अल्टीमेटली द चिकन्स कम होम टू रूस्ट. चिकन कम होम्स को रूस्ट का मतलब है जो बुरी आदतें हमने डाली उनका फिर असर हम पे होने लग गया. चिकन्स कम होम टू रूस्ट. दैट इज द रीजन वाई इन मैनी नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, देयर इज डिमांड टू पनिश द पेरेंट्स फॉर एनी क्राइम्स कमिटेड बाय देयर यंग चिल्ड्रन. अब तो कई देशों में पेरेंट्स को सजा देने लग गए. सम कंट्रीज आर इवन ऑफरिंग द मदर. ये मैंने एग्जाम्पल दिए सारे, जो एग्जाम्पल्स मांग रहा है. अब मेरे पॉइंट को, तो मेरा पॉइंट ये सारे का सारा इससे एक ही साइड पे जा रहा है, एक ही साइड पे, कि हाँ यही एक रीजन है. आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. टू सम अप, टू कंक्लूड, ऑल ओवर द वर्ल्ड द सिविल सोसाइटीज आर लुकिंग फॉर रीजंस फॉर द शार्प इंक्रीज इन द बैड हैबिट्स इन द यंग टीनेजर्स एंड द वे टू कंट्रोल इट. ढूंढ रहे हो क्या हुआ क्या. We may look no further than का कहते हैं, सिंपल बात ये है. We may look no further than मतलब इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. Then to explore the consequences of the absence from the home of each one of the parents. बस ये देख लो कि दोनों पेरेंट्स के जाने से क्या हुआ, तो आपको आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. There is clinching evidence to suggest that most of the young children are naive. पक्का एविडेंस है कि दोनों ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अभी भोले होते हैं, और उनको आप अनसुपरवाइज नहीं सोच सकते क्योंकि वो सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक नहीं जा सकते. तो मेरा व्यू पूरा एक्सप्लेन हो गया और कंक्लूड भी हो गया. ये आपका लाइन ग्राफ था. कितने स्टूडेंट्स 3 देशों से आगे ज्वाइन किए, ये उसकी इमेज थी. आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट ग्रीस के थे पहले बहुत ज़्यादा थे, फिर लगातार गिरते रहे, और जो स्टूडेंट्स बाकी दोनों देशों के थे वो बढ़ गए. ठीक है ना. अब आप आगे चलिए. द गिवन रेक्टिलिनियर ग्राफ illustrates and correlates the information about the changes in the number of students from Iran, Greece and Turkey who joined Sheffield University. अब आपने लर्नर्स वगैरह नहीं कहना, इनको स्टूडेंट्स ही कहना, स्कॉलर्स कह सकते हैं. The study is about a period spanning approximately half a decade from 2005 to 2009. Overall, at the beginning of the period, the students from Greece were much more in number than the number of students from the other 2 countries. However, their number fell steadily over the period, while that of the other grew sharply. उनके ज़्यादा थे, वो नीचे गिरे, और बाकी दोनों के बढ़ गए. यही बात समझाने के लिए ग्राफ बना. और अब बॉडी. द स्टूडेंट्स हु जॉइंड द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द फर्स्ट मेंशन कंट्री मतलब ग्रीस, ऊपर मैं मेंशन करके आया हूँ, वो नियर अबाउट 118,2005 albeit, however की जगह, this number slid to be just 1/3 of this peak level by 2007
and thereafter was almost steady. या आप लिख सकते हैं was at a plateau till the next year. तो by, till, at इनको जरूर नोट करिए. Then it slid again and touched its lowest point in 2009 to be just 40. एक लाइन खत्म. एक ही पैराग्राफ में तीनों लिखनी है. However, the trend was almost the reverse, the opposite, when it came to the new joining from Iran. From a low of just under 40 in the beginning, initially, their count, या number grew steadily right through the period to be almost 160 by the end of the period. This was by far the highest number of fresh foreign student enrollments that year. Furthermore, in 2005, the least fresh enrollments from Turkey, that is 20, they also grew sharply over the period to be almost 6 times that figure. आप drastically भी sharply यूज़ कर सकते हैं, dramatically भी यूज़ कर सकते हैं by the end of the period. ये लेटर है, आप देख सकते हैं अगर आपने टास्क 1 जनरल किया था, और ये उसकी सजेशन है. तो आई होप आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा, और आप क्लास में आप मुझे पूछ भी सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.